علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچوں، آج مسئلہ لکھو۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو منہ بھر کر کے قے کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن ہاں اگر جان بوجھ کر کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ہنسی یا مذاق میں طلاق دے دیا تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ارے رکو مفتی صاحب، رکو۔ یہ آنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہ کوئی ادب لحاظ ہے اور نہ ہی سلام کلام۔ اچھا غلطی ہوئی گئی سلام۔ ایسے تھوڑی سلام کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب تمہیں بتائی دو کیسے سلام کرا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے مفتی صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ ارے بھائی ابھی بچوں کے سبق کا وقت ہے، آپ مسئلہ بعد میں معلوم کر لینا۔ مفتی صاحب ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے لوگ کے مسئلہ حل کر دو۔ ارے بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ابھی بچوں کے سبق کا وقت ہے، مسئلہ معلوم کرنے کا ٹائم الگ ہے، آپ لوگ مسئلہ بعد میں معلوم کر لینا۔ لکھو بچوں۔ مفتی صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہے بھوا، ہمار بات سنو، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ یا اللہ کیسی مخلوق سے پالا پڑا ہے۔ اچھا چلو بتاؤ تمہارا ہی مسئلہ حل کریں، کیا بات ہے؟ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ مفتی صاحب بات کچھ ایسے ہے، ہم اپنا رونا روبے آئے ہیں، اپنے حالات سے دو چار ہیں، دل باہر آوت ہے، بتائی تو کا بتائی، زبان لرزت ہے، کچھ کہا چاہی تو لیکن یہ لفظ لیکن کیا بلا ہے؟ حضرت ہم کا فتویٰ لے کر تم فتویٰ دے دو، صرف فتویٰ تم فتویٰ دے دو بس۔ ارے بھائی کیا تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہوش میں آؤ، اپنے حالات بتاؤ، اور کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی، کچھ بتاؤ گے جب ہی تو فتویٰ دوں گا۔ مفتی صاحب دنیا والے ہم کا پتن میاں کہت ہیں، ہم ایک کسان آدمی ہیں، ہمارے ایک مدت سے اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزرت رہا ہے، ہر موڑ پر ہم دردی اور دل لگاو رہا ہے، وہ بڑی غم گسار رہا ہے، محبت سے وہ کئی دل بھرا رہا ہے، لڑکن کے پرورش اور گھر کی حفاظت کا اپنا فریضہ سمجھت رہا ہے، سیرت کے علاوہ خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ رہا ہے، اور اس کا حسن و جمال بھی لاکھوں میں ایک رہا ہے، اور نام بھی بڑا سندر رہا ہے۔ بتائیں مفتی صاحب کا نام رہا ہے؟ انمول نام رہے، انمول۔ ارے پتر میاں، یہ میں نے تم سے حیران و پریشانی کے اسباب دریافت کیے ہیں، نہ کہ بیوی کے حسن و جمال پر تبصرہ کرنا۔ ٹھنڈی سانس نہ بھرو، اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ کل ہم اپنے بیوی انمول سے کہہ کے گئے رہن کہ ہم کھیت میں ہل چلاوے جائتن اور تم کھانا لے کے آئو، لیکن وہ دیر کر دیس، اب ہمارے انتظار کی گھڑی بڑھتے گئی، راہ تکتے رہن، جب اوکے آوے کے آہٹ کونا اور سے نہ سنیں تو ہم گھر کے طرف چل دیئن، راستہ میں وہ ناشتہ لے کر آوت رہا ہے، ہم کا دیکھ کر کچھ کہا چاہت رہا ہے، لیکن ہم غصہ سے لال پیلا ہوئی گئے رہن اور اپن ہوش کھوئے بیٹھے رہن اور پھر وہی کام کر دیا۔ کون سا کام؟ مفتی صاحب وہی کام جو ایک اصلی مرد کرت ہے، طلاق کو تینوں گولیاں پھائے کر دیا، وہ روبہ چلا گھر جائے بیٹھی، ابھی ہم کا تھوڑی دیر نہ ہوا کہ ہم کا دن میں تارا نظر آوے لاگ۔ کیوں؟ کیا آنکھ کی بینائی میں اضافہ ہو گیا تھا، یا دن میں ستارے صرف تمہارے لیے ہی نمودار ہوئے تھے؟ پھر تو تم دانشور آدمی دن میں ستارے دیکھتے ہیں۔ جی نہیں، بلکہ ہم نے بھی ایک نشہ سوار رہا ہے، اب اتیے گواہ ہے، پھر ہوش آوا کہ اب ہماری زندگی کیسے کٹی ہے، کون ہمارا ہمدردی سنی ہے، اسی لیے دورت بھاگت آئے ہیں تمہارے پاس۔ پتر میاں اگر یہ دور تم طلاق دینے سے پہلے لگا لیتے تو ان مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ مفتی صاحب کا کری، تم جانا تو ہم پٹھان ہوئیں، پٹھان والا غصہ نہ رو پائیں۔ ارے بیوقوف آدمی، تم کو غصہ آ گیا تھا تو اس کو مار دیتے یا خود ہی گھر چھوڑ کر اس وقت چلے جاتے؟ طلاق کیوں دے دیا تھا؟ مفتی صاحب غلطی ہوئی گئی، اب بہت پچھتائی تھا۔ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بتاؤ تم نے غلطی کیوں کی تھی؟ مفتی صاحب ہم لوگ آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، کوئی انٹر کے امتحان دے تھوڑا آئے گا، جو ہم سے اتنا سوال کرو تو، اور ہم لوگ بتا گئے جو ان کام جان بوجھ کے کرا جائے وہ کا غلطی نہیں کہتے ہیں بلکہ شرارت کہتے ہیں، اور دین کے بارے میں تھوڑا بہت ہم لوگ معلوم ہے۔ اچھا آپ کو بھی دین کا معلومات ہے؟ ہاں۔ تو ذرا میت کو مٹی دینے کی دعا سنائیں۔ مفتی صاحب یہ کام ہمارے محلہ کے امام صاحب کے ہوئے، میت کا نہلانا، دعا دینا، بخشوانا وغیرہ وغیرہ، یہ کام ہمارے تھوڑی ہوئے، ہفتہ میں ایک دن کھانا خرچہ کپڑا کاہے کا دیتن کہ وہ ہم سے پڑھاوے اور وہ صرف کھائے کا جانت ہے۔
या अल्लाह, किस इंसान से पाला पड़ा है। अच्छा पुत्तर मियाँ, आप ये बतलाएं गुस्ल में फर्ज कितने हैं? ये का होता है? जब तुम नापाक होते हो तो नहाते हो कि नहीं? वो तो हमारे जुम्मा के नहीं थे। यही तो पूछता हूँ कि नहाने में क्या चीजें जरूरी है? 3 चीज जरूरी है। नंबर 1 साबुन दानी का होना, नंबर 2 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 3 नहाने के बाद तौलिया का होना। वो तो हम पहले से रखे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, पता चल गया वाकई बहुत बड़े आप जाहिल हैं। तभी तो आपने जाहिलों की तरह तीनों तलाकें दे दी। अगर तलाक देनी ही थी तो शरीयत के मुताबिक तलाक देते। हजरत बहुत बड़ी चूक हो गए। अब आप बताओ शरीयत में तलाक दे क्या तरीका है ताकि होशियार रहे आइंदा सब लोग। सुनो, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए या बीवी नाफरमान बदखसलत हो जाए तो शौहर को चाहिए हद्दल इम्कान बर्दाश्त करे, लेकिन जब निभाव की कोई भी सूरत ना हो तो औरत के हैज से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे दे, जिसमें उससे सोहबत ना की हो, या तीनों तलाकें 3 पाकी में दे दे। और एक सूरत ये भी है कि तीनों तलाकें एक ही पाकी में दे दे, जो आजकल जाहिलों का तरीका है। लेकिन पहला तरीका सबसे बेहतर है। अगर तुम पहला तरीका इख्तियार करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं थी, बगैर निकाह के ही अपनी बीवी से रुजू कर सकते थे। हजरत बड़ा दर्द होता है, सीना जलत है, कोई तो सूरत निकालो। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है तुम्हारे लिए इस्लाम में। जानो यार, तुम कौन काम के मुफ्ती हो जो एक सूरत नहीं निकाल सका? तो चलो मैं पुत्तन चाचा ये मौलवी से ना हो पे कौन और का हेरा जाते। अरे रुकाओ, हो सकता है इन्हीं से मसला हल हो जाता हो। अब सेगत ना बोले लाठी मारी। हजरत चाहे कुछ खर्चा पानी ले लो, लेकिन इनका काम बना दो। बेचारे छोट लोंडे रेगा हो जाएंगे। इनके सूरत देखो, ऐसा लागत है कितने दिन हो गए खाने ही नहीं खाइन है। अभी पुतनवा अपने तो भिखारी गए और इन्होंने का भिखारी बना दिए। अच्छा, उनकी हालत पर तरस खाते हुए हमें एक सूरत समझ आ रही है, लेकिन वो भी गलत में। हजरत सूरत कहाँ गए? जरा जल्दी बताओ। अब सूरत बताओ, बस सूरत। वो सूरत हलाला की है कि उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तिफाक से वो शख्स भी तुम्हारी तरह तलाक दे दे, तो औरत के इद्दत गुजारने के बाद फिर तुम उस औरत से निकाह कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि शौहर सानी उसे तलाक दे ही दे। मुफ्ती साहब, तुम कहा था कि हमारे में कौन और से निकाह करे? हम बर्दाश्त ना कर सके तन। हम तो का जान से मारे पठान बर्दाश्त ना कर सके तन कि हमारे में कौन और से निकाह करे। अब इसके अलावा कोई सूरत नहीं है इस्लाम में। अगर वो तिलाक नहीं दी तो हम क्या करी? तो फिर आप जाकर खेत में हल चलाएं या किसी और औरत का तलाश कीजिए। इसके अलावा कोई सूरत नहीं, क्योंकि उस शख्स ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, ना कि तुझ जैसे बेवकूफ और नादान की तरह औरतों की जिंदगी से खेलने के लिए। लिहाजा तुम कोई और ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक सवाल है आपसे कि इस्लाम में शौहर अव्वल के पास जाने के लिए दूसरी शादी जरूरी क्यों है? 3 तलाक के बाद फिर दोबारा रह सकती है ना? वाक़तन आपने एक बारीक और अहम सवाल किया है। असल बात यह है कि इस्लाम ने तलाक को मजबूरी में जायज़ करार दिया है। जैसे कि जब निभाव की कोई भी सूरत ना हो तो डराने के लिए एक तलाक दे दो, फिर भी ना सुधरे तो एक तलाक और दे दो, अब भी ना सुधरे तो एक तलाक और दे दो। अब जरा सोचो, जो औरत 3 बार तलाक देने से ना सुधरे, अब अगर दोबारा शादी की इजाजत दे दी जाए तो फिर वही झगड़ा फसाद रहेगा। इसीलिए इस्लाम ने चाहा उन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए, दोबारा शादी की इजाजत न दी जाए। लिहाजा 3 तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं कर सकती, बल्कि दूसरे से शादी कर ले और अपनी जिंदगी को खुशगवार बना ले। लेकिन जब दूसरे ने भी तलाक दे दिया और औरत ने इद्दत भी गुजार ली, अब अगर उसका इरादा पहले शौहर से शादी का हो रहा है तो इस बात की अलामत है कि उसके समझ में आ गया कि पहला शौहर ही उसके लिए गनीमत है। जब समझ आ गई, सुधर गई, इस्लाम कहता है कि तुम पहले शौहर से शादी कर सकती हो और ये इजाजत दूसरे से शादी से पहले नहीं मिल सकती, क्योंकि जो समझ दूसरे से शादी से पहले आती है उसका कोई एतबार नहीं होता। असल समझ तो ठोकर खाने के बाद ही आती है। शायर कहता है, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, इंसान होश में आता है ठोकरें खाने के बाद। वाह वाह मुफ्ती साहब, आपने क्या बात कही। मुफ्ती साहब, एक सवाल और मेरे जहन में मुद्दतों से खटक रहा है। वो ये है कि जब कोई मर्द अपने बीवी को तलाक देता है तो हलाला कराया जाता है। ये तो गंदा काम है, तमाम मज़ाहिब में नापसंदीदा है, लेकिन मजहब इस्लाम एक पाक मजहब होकर भी इसकी इजाज़त क्यों देता है?
मेरे समझ से बाहर है। अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। असल बात यह है कि जो भी इस्लाम पर एतराज़ होता है वो गलत फहमी की बिना पर होता है। इसलिए अब बात समझो, एक है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये तो ना शरीयत की नज़र में बुरा है और ना दुनिया वालों की नज़र में, और एक है हलाला की शक्ल बना लेना जो दुनिया वालों की नज़र में भी बुरा है और शरीयत की नज़र में भी बुरा है। अच्छा, ऐसी बात है तो बराए करम दोनों की वजाहत कर दीजिए। एक है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये तो सबको मालूम है, और एक है बना लेना, वो ये है कि दूसरे शौहर से इस इरादे पर शादी करना कि कुछ दिनों के बाद तलाक दे दे, फिर ये औरत पहले शौहर से शादी कर ले। ये हलाला की शक्ल बनाना दुनिया वालों की नज़र में बुरा है और शरीयत की नज़र में भी बुरा है, बल्कि ऐसे शख्स पर लानत भेजी गई है। लेकिन मुफ्ती साहब, हलाला की शक्ल खुद नहीं बनती है बल्कि लोग बनाते हैं। मैं आपको लोगों का अमल नहीं बतला रहा हूँ, बल्कि इस्लाम का कानून बता रहा हूँ कि इस्लाम का कानून ये है और लोगों की गलतफहमी ये है। मुफ्ती साहब का गुस्सा में भी तलाक हो जाता है? अरे पुत्तर मियाँ, तो क्या कोई खुशी में भी तलाक देता है कि मोहतरमा आप बड़ी दिलरुबा हसीन व जमील खूबसूरत हो, आओ मोहब्बत भरी तलाक ले जाओ, ऐसा कोई तलाक देता है? मुफ्ती साहब, जाते जाते एक और सवाल करना चाहता हूँ कि मर्द अगर मजबूर हो जाए तो तलाक से अलग हो जाता है, लेकिन अगर औरत मजबूर हो जाए तो क्या करे? जी हाँ, अगर औरत मजबूर हो जाए तो शरीयत ने उसको खुला की शक्ल में हुक्म दिया है कि वो शौहर से अलग हो जाए। मुफ्ती साहब, क्या एक मजलिस की 3 तलाक वाक़ हो जाती हैं? जी हाँ, एक मजलिस की 3 तलाक वाक़ होती है, चाहे एक मजलिस में तीनों तलाक़ें दें, चाहे अलग अलग मजलिस में तीनों तलाक़ें दें, 3 ही वाक़ होती है। इस पर तमाम अइम्मा का इत्तिफाक और उनका मोहर भी लग गया है। मुफ्ती साहब, चलत चलत ही बताई दो, अब हमार कोई सूरत है? आपके लिए कोई सूरत नहीं। अरे पुत्तन चाचा, ये तुम का कहे बैठे हो? तुम्हारे लिए वही मेहरुआ ठीक रहा है, भला झाड़ू कुचरा बिजनेस मार खाते रहा हो, वही ठीक रहा है, वही ठीक रहा है। और ऐसे मुफ्ती थी लेके आएगा जी का कुछ नहीं पता है। तब चलो भैया, का करी, उके बगैर दिल ना मानत है, लेकिन एक तरफ शरीयत का हुक्म है, दूसरी तरफ मेहरुआ है। हम शरीयत का मानित है और बीवी का छोड़ित है। हजरत, जाने से पहले कोई ऐसा चीज सुनाई दो जी जो हमारे पुत्तन चाचा बेकला की समझ में और हम लोग के समझ में आ जाए। अच्छा, सुनो, खासकर आपके लिए है पुत्तन चाचा, आप लोगों के लिए भी है। समाप्त। बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती, बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती, बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों का है गुलदस्ता खंजर न समझना तुम, फूलों के चमन पे तुम, फूलों के चमन पे तुम जब बिजली गिराते हो तुम शर्म नहीं आती, तुम शर्म नहीं आती, बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती, शौहर के लिए अपना घर छोड़ के आती है, सह कर जो हजारों गम हर फर्ज निभाती है, तुम अपनी ही बीवी पर, तुम अपनी ही बीवी पर जब हाथ उठाते हो तुम शर्म नहीं आती, तुम शर्म नहीं आती, बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती,
दीवार गिराती है जो अपने ही सपनों के तेरे लिए छोड़ाई, जो प्यार भी अपनों के। दीवार गिराती है जो अपने ही सपनों के तेरे लिए छोड़ाई, जो प्यार भी अपनों के। तुम तंज के तानों के, तुम तंज के तानों के जब तीर चलाते हो तुम शर्म नहीं आती, तुम शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती। घर बार में खुशियों का वो दीप जलाती है, राशिद जो सितम सह कर हर फर्ज निभाती है। घर बार में खुशियों का जो दीप जलाती है, राशिद जो सितम सह कर हर फर्ज निभाती है। इज्जत का तमाशा तुम, इज्जत का तमाशा तुम जब उसकी बनाते हो तुम शर्म नहीं आती, तुम शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो तुम शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो तुम शर्म नहीं आती। तन्मिया कुछ समझ में आया? मुफ्ती साहेब तुम्हारी नतिया हमार अखिया खोल दी से, अब ऐसा गलती ना हुई, दूसरी बारी मेहरबा करना से। चलिए, सलाम अलैकुम।